ठीक ठीक है। सो लास्ट टाइम पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे, एक प्रॉब्लम की भी थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को दोबारा से देखते हैं। ठीक, ओके। द प्रॉब्लम वाज दिस, टू सिलेंडर्स आर कनेक्टेड बाय अ रोप दैट पास। अच्छा, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सब आप लोग को विजिबल है? इज इट क्लियरली Yes, विजिबल? sir. Yes, sir. Okay, Yes, then sir. then good. Okay, the problem is two cylinders are connected by a rope that passes over two fixed rods as shown in the figure. ठीक है ना? These are two rods over which the cylinder is rope is passing, and these are two cylinders, cylinder A and B. ठीक है? Knowing that the coefficient of friction, static friction between the rope and the rod is 0.4, okay, then we have to determine the range of mass m of cylinder at point D for which the equilibrium is maintained. Okay, equilibrium is maintained. So problem was very well explained in the class, and we had done some one part of this problem, that the block this block is trying to move in the downward direction, and we were trying to solve this problem for the second part, that this block D, now in the second case the block D was to move in the downward direction. Okay, so let's start. We will do it from the start, okay, from the scratch. So first of all, we have to do the analysis of the problem. Okay, what the problem is all about. You all know. You do not have to. The problem is the 50 kg block and a mass of block M are connected with the rope with the help of a rope. Rope is passing over the two rods. ठीक है ना? तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है? देयर इज फ्रिक्शन इन बिटवीन द रॉड्स एंड देयरफॉर देयर विल बी different magnitudes of tension in different portion or different parts of the rope. ठीक है ना? different parts of the rope. See, we have three parts of the rope, three portions, AB, BC and CD. तो इन तीनों पार्ट्स में अलग अलग टेंशन होगा. ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक है ना? तो हमने अज्यूम कर लिया, लेट T1, T2 एंड T3 आर द टेंशंस इन द parts AB, BC and CD respectively. AB, BC, CD and respectively. Okay, so we have this thing. Now coming to the next part, and continuing the analysis of the problem, we can have two cases. First one क्या है कि हमारा जो ब्लॉक, दो ब्लॉक्स थे, एक 50 kg ब्लॉक एंड अदर वन इज अ ब्लॉक ऑफ अननोन मास m. ठीक है, तो अगर 50 kg ब्लॉक नीचे मूव करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस सी बात है अननोन मास का जो ब्लॉक है वो ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा. तो हमने दो केसेस बना लिए कि 50 kg ब्लॉक, एक केस वन हमारा है क्या, 50 kg ब्लॉक जो है हमारा वो डाउनवर्ड्स मूव करे. ठीक है, और दूसरा ही केस हमारा क्या है कि 50 kg ब्लॉक जो है वो हमारा ऊपर मूव करने की कोशिश करे. ठीक है ना, इम्पीड्स इसीलिए लिखा हुआ है. ठीक है ना, इम्पीड्स. ठीक है, अच्छा, जब 50 kg ब्लॉक जो है हमारा ऊपर नीचे मूव करने की कोशिश करेगा, जो टेंशन था हमारा, टेंशंस, ठीक है ना, T1 एंड T2, T1, T2, T3. T1 किस में है भाई? T1 हमारा यहाँ पर है, T1 ये रहा, T2 एंड T3. ठीक है, T3. सो जब हमारा 50 kg ब्लॉक जो है डाउनवर्ड्स मूव करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास क्या सिचुएशन होगी भाई? T1 will be greater than T2 and T2 will be greater than T3. And if our 50 kg block tries to move upward, then the case will be reversed. Okay, T1 will be the smallest, T2 will be in the middle and T3 will be the greatest or largest. ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है. ठीक, अच्छा, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो चार पोर्शंस हैं, चार ब्लॉक्स हैं हमारे पास. ठीक है, चार चीज़ों की हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी. ठीक, पहले हमें ब्लॉक ए का जो मास 50 kg मास है उसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. देन इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर
block A, you will be having what? Tension. You will be having two forces acting on the block. Two forces acting on the block. What are those forces? T1 in the upward direction and its weight 50 into G. ठीक है ना, 50 G, that is 50 into 9.81. Okay, is it clear to everyone? Is it clear Yes, to sir. everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, गुड. नाउ तो इस तरीके से हमारा फ्री बॉडी डायग्राम तो इसका हम बना लिए ब्लॉक ए का. सिमिलरली यू हैव द रॉड एट बी, फर्स्ट रॉड. इस पे आपका क्या है, ये रॉड को अगर आप सामने से देखेंगे तो ये आपको प्रोजेक्शन दिखेगा, ठीक है ना, जहां पे हमने बी मार्क किया था. ठीक. नाउ यू आर हैविंग द रॉड एंड ओवर दैट रॉड यू आर आल्सो हैविंग अ रोप पासिंग, ठीक है ना. And due to friction you will be having different tensions in the different sides of the rope. Okay, ठीक है. तो सिंपल सी बात है भाई, क्या हो गया, ये कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ रैप. एंगल ऑफ रैप कितना है भाई, बीटा. हमने 90. यस एग्जैक्टली 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री और पाई बाय 2. रिमेंबर यू हैव टू यूज इट इन रेडियंस, यू हैव टू यूज इट इन रेडियंस. ओके, ठीक है. नाउ यू हैव ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉड बी, ठीक है, एंड दोज फोर्सेस आर T1 एंड T2. ठीक. नाउ कमिंग टू द सेकेंड रॉड you have what, T2, C, rod C. Again the wrapping is same and you have different tensions in the different sides, on the different sides of the rope. Okay, different sides of the rope. And yes, anyone, कोई कुछ कह रहा है क्या? No. Okay, now coming to the third part, fourth block of mass m, that is we have to find the mass of this block. So again only two forces are acting on this block. What are those forces? Its weight mg and the tension T3 in the upward direction. ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है. फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई परेशानी आ रही हो, क्या कोई फोर्स कैसे आ गया, ये कोई पूछना चाह रहा हो? एनीवन? नो सर. नो. ओके. नाउ सो ठीक है भाई. अब देखिए, जब फ्री बॉडी डायग्राम बन गया तो अब हम केसेस अपने लेते हैं. पहला केस क्या था भाई, हमारा 50 kg ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड्स मूव करने की कोशिश कर रहा है. तो हमारे पास सिचुएशन क्या थी भाई, T1 is greater than T2 is greater than T3. Simple. T1 is greater than T2 is greater than T3. Now what we have to do is we have to consider equilibrium. Okay, we had drawn the what forces on each blocks, ठीक है ना. तो A, B, C and D. तो one by one we will be considering equilibrium at each point. पहले केस में हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं, तो वहां पर हमें दो ही फोर्सेस थे भाई ए पे. कौन कौन से? एक T1 ऊपर लग रहा था और दूसरा T2 नहीं, 50G, 50 into 9.8, 50G डाउनवर्ड्स लग रहा था. इसके अलावा कोई फोर्स लग नहीं रहा था. T1 is equal to 50G. So by this you will be having T1 is equal to 490.5 Newton. 490.5 Newton. ओके, मेरे ख्याल से ये लास्ट टर्न पे सबका यही आ रहा था आंसर. सबका यही आंसर आ रहा था. यस, वेरी गुड. यस सर. नाउ कमिंग टू दी. Yes, sir. Yes. Who is there any problem? नो सर. Okay. Now coming to the equilibrium at point 2. At point 2, ठीक है ना. So equilibrium की बात तो नहीं कर सकते, but we have the relation at point B. At point B we have the relation what? क्या होता था रिलेशन भाई? T1 upon T2, ठीक है, is equal to e to the power coefficient of friction times the angle of wrap beta. ठीक है. So for at point B we have the
coefficient of friction 0.4 as it is given in the problem, and the angle of wrap is pi by 2. Okay, so we can and we have found the T1 from the equilibrium at A. So we have what T2 is equal to 261.68 newtons. T2 is equal to 261.68 newtons. Okay, 261.68 newtons. One more thing, all of you are requested that you all have to use the calculator. Okay, please try to solve the problem as I am explaining. Okay, maybe I have done some mistakes during making this during the preparation of this presentation, so please be with the calculator and cross verify me. Okay, ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ठीक, हाँ okay. Now similarly, now we have the tension T2. We have found this tension T2. Now coming to the point C, we have the relation between tensions T2 and T3, and the relation is same. It is given by the ratio of tensions on the two sides is equal to e to the power coefficient of friction times angle of wrap. Now coefficient of friction is same, it is equal to 0.4, and angle of wrap is again same. For this case, we can easily find T3 is equal to what, 139.6 newtons. 139.6 newtons. ठीक है, तो अब हमें T1 मिल गया, T2 मिल गया, T3 मिल गया. Now coming to the last block, we have what, इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे हम लोग डी पे, और डी पे अगेन हमारे पास एक ही सिचुएशन है भाई. क्या, एक ब्लॉक है मास m का, तो उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं. कौन कौन से? एक तो लग रहा है T3 और दूसरा लग रहा है भाई क्या, mg. Apart from this, we do not have any other forces, so we can balance them. Okay, we can balance them. And what is this? What will be the balancing? T3 is equal to mg. And we have already calculated T3 from the earlier equations. Earlier we have calculated the T3, and we can substitute m is equal to T3 by g, and T3 is 139.6 divided by 9.81. We will get m is equal to 14.23 kg. Okay, now it was very simple. Coming to the next part, we had the second case. What it is? The case 2, when the 50 kg block is impeding upwards. ठीक है, जो 50 kg ब्लॉक है वो क्या कर रहा है भाई, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. तो हमने पहले के इसकी एनालिसिस में किया था क्या, जब ऐसा केस होगा तो T1 जो होगा वो सबसे छोटा होगा और T2 बीच में, एंड देन T3. So T3 is greater than T2 is greater than T1. Okay, we will be having this situation. Okay, now what we have to do? We have to do the same thing as we had done it in the case 1. And what we had done, we had considered the equilibrium at point A. So from equilibrium at point A, we had what, T1 and is equal to 50g. ठीक है ना, ठीक है, तो T1 is equal to 50g. So T1 is again it will come the similar. ठीक है ना, जैसे पहले केस में आया था T1 is equal to 490.5 न्यूटन्स. ठीक है, तो यहाँ तक तो आपकी चीज़ सेम रही भाई, लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी. ठीक है ना. When you come to this point at point B, you will be having different relation. ठीक है ना, रिलेशनशिप तो सेम रहेगी, बट यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स जो है ऊपर नीचे होंगे. ठीक है ना, क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास T2 इस बार T1 से बड़ा है. ठीक है ना, T2 जो है इस बार T1 से बड़ा है. ठीक है, सो व्हाट वी हैव इज T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू e to the power coefficient of friction times angle of wrap.
angle of wrap. ठीक है, mu is same, beta is same. You will get T2 value is equal to 919.4 919.42 newtons. Okay, please cross verify me, everyone. Is it Yes, coming the sir. same or not? Same, sir. Same, sir. Okay, thank you. Now, coming to this, we can have the similar thing at point C, but this time what? T3 is greater than T2, so we will be having a relationship T3 upon T2 is equal to e to the power mu times beta. Okay? Now, we have the mu value 0.4 and angle of wrap value is equal to pi by 2. ठीक है, and we can easily calculate T3, and T3 will be equal to 1723.42 newtons. Verify me, Yes, everyone. sir. Okay. Yes, sir. Yes, Correct. sir. Okay, correct है. करेक्ट है सर. Okay, thank you very much. Now, considering the, अब आप बात करते हैं चौथे ब्लॉक की, जो हमारा ब्लॉक है at point D, we can consider the equilibrium at this point. What will be the forces? Only two forces. What are those? T3 and weight of the block. Apart from this, there is nothing going on there. Okay, so we can have the equilibrium at this point, at point D, and we can have T3 is equal to mg, and we know T3 and the value of g. So we can easily find what? We can easily find, okay, there is a slight mistake. Cut it. T3 was how much? 173 1723.42, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9.81. ठीक है, so on calculating this, we will get m is equal to what? 175.68. Verify me. Am I correct? Sir. Or yes. Yes, sir. यस सर करेक्ट है. Yes, sir. Correct. Yes. Anyone? Somebody was asking, saying something. यस सर राइट है. Right. Okay. You are saying I was right. Okay. Thank you. Okay. Okay. Coming to the, तो हमारी ये बात यहाँ तक तो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई. नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन्स बाय सॉल्विंग द, ठीक है ना, अब कंक्लूड भी कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को. बाय सॉल्विंग द टू केसेस वी कैन कंक्लूड दैट द गिवन सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इफ योर मास m remains in between what? 175.68 kg से लेकर के, ठीक है ना, 14.23 kg के बीच में अगर रहेगा, 14.23 kg के बीच में से लेकर के 175.68 kg तक अगर आपका मास रहता है, सो क्या होगा भाई? आपका सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा. Is it clear to everyone? यस सर. Okay, very good. Anyone having any doubt regarding this can ask. Okay. Amira, Mirza Mubashira, Aisha, Tuba, Ansari Abdullah, Abrar, Abu Affan, Ansari Sufyan, Agdas Safwan. Anyone having any kind of doubt regarding this problem can ask. Okay, so shall I proceed further? यस सर. Okay, so coming to I give you 10 minutes, and you all try to solve this same problem but having different somewhat different problem. ठीक है, कुछ हद तक चीज़ें try to read this and try to solve this problem by your own. Okay, I give you 10 minutes. I will ask at 9:30 to for the answers. Okay. Okay, sir. Okay.
सर म्यू की वैल्यू है 1/पाई इंटू लॉग ऑफ पाई/2। Okay, you tell me the numerical value, exact answer. Okay. Hmm. Adnan, you have to tell me the exact value. Do it in decimals. 0.29। 0.29. Okay. Everyone else, please verify him. Is he correct or he has done something wrong? And what is the value of T2, second part of the problem? T2 की वैल्यू नहीं लाया था सर, T2 की इक्वेशन लाया था और दोनों दो दो केस के लिए उसको इक्वेट किया था। Acha. No, here you are going to have only one case, na? See, सर T2 की वैल्यू क्या म्यू की वैल्यू क्या आ रही? आपकी क्या आ रही है भाई? आप बताएं. 0.26। Okay, please write it in the chat box. Actually, your voice is very distorted. ठीक है सर। Write it in the chat box. Okay, Mr. Muhammad Rajpura, you have, I think it's 0.292. Yes, yes, okay, 0.292. ठीक है. करेक्ट है सर, मतलब मेरी। Yes, yes. Find T2. Find T2. Anyone else who is having the answers? No? चलिए भाई कोई बात नहीं. We will see. Coming to the solution again. See, you all have to first read the question, okay? Two cylinders are connected by a rope that passes over two fixed rods as shown in the figure. It was the same case, but knowing that the cylinder D, this is moving, impends to move upwards. It is clearly mentioning it is moving upwards. That means this is moving downwards. Okay, ठीक है. And the mass m is equal to 20 kg is given. Okay, you have to find two things: the coefficient of static friction between the rope and the rods, and second thing, the corresponding tension in the portion BC and corresponding tension in the portion BC. इस रोप में T2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, इस पोर्शन में जो टेंशन है. ठीक है, तो देखिए इसमें तो केस डिफाइंड है कि ये डाउनवर्ड्स मूव कर रहा, तो हमारा पहले केस जैसा है. क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, एजम्पशन पहले जैसा ही है, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम. सो इसमें हमारा सिर्फ एक केस आएगा कि इट इज 50 kg इज मूविंग डाउनवर्ड्स, सो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3. सिंपल. ठीक है, कमिंग टू द फ्री बॉडी डायग्राम. I do not have to explain it again. I do not have to explain it again. So it is clear to everyone कि दोनों ब्लॉक्स पे कितना कितना फोर्सेस लग रहा है. T1 लग रहा है ब्लॉक ए पे, T1 लग रहा है एंड इट्स वेट 50 g.
इधर at point B we have T2 and T1, at C we have T3 and T2. Okay, now at D we have 20 kg. Okay, so we are having 20 g downwards and T3 in the upward direction. ठीक है, so upon solving क्या मिलेगा भाई? At equilibrium at A we have what? T1 is equal to it is acting upwards and 50 g. ठीक है, 50 g and this is T1. ठीक, तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे आपको मिल जाएगा क्या? सर, हाँ, 310.226 आ रहा। क्या चीज आ रहा है? T2 कितना आ रहा है आपका? 310.226। 310 ठीक है, अभी देखते हैं, ठीक है ना? ओके, नाउ T1 इज इक्वल टू, इस तरीके से आप T1 की वैल्यू निकाल लेंगे और ये पहले की क्वेश्चन की तरह ही सेम वैल्यू आई। ठीक है, कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम एट पॉइंट डी, ब्लॉक डी के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कंसिडर करते हैं। वहाँ पे क्या लग रहा है भाई? T3 एंड डाउनवर्ड्स हमें लग रहा है 20 g इसका वेट। ठीक है, तो T3 इक्वल टू mg, दैट इज T3 इंटू 20 इंटू 9.81 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1962.2 न्यूटन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें T3 की वैल्यू मिल जाएगी। T1 मिल गया हमें एंड T3 मिल गया। ठीक है, T1 मिल गया एंड T3 मिल गया बाय कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम एट पॉइंट A एंड पॉइंट D। ठीक है, at B we have what? T1 upon T2 is equal to what? Mu times beta, that is angle of wrap हमें पता है, बट एंगल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल गई। T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए एंड यू विल बी हैविंग द वन इक्वेशन दैट इज थर्ड। इसको आप मार्क कर दीजिए, थर्ड। नाउ consider the equilibrium at consider the point C and you will be having what? Tension T2 upon tension T3 is equal to e to the power mu times angle of wrap. Again, you do not know the coefficient of friction mu, but you know the angle of wrap value. ठीक है, you have two equations, third and fourth. ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि T2 तो पता नहीं है आपको, यहाँ भी T2 पता नहीं है, तो क्या करिए भाई? आप सीधे इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब आप इन दोनों को इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? T1 लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। T2 अपॉन T3 लाइक दिस। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई? E की पावर म्यू टाइम्स बीटा का स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं क्या? सीधे आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग व्हाट? T1 अपॉन T3 इज इक्वल टू e टू द पावर 2 times mu into beta। ठीक है, and now you can take the anti-log on the both side। ठीक है ना, सॉरी, log on the both sides, you will get what? 2 mu beta is equal to ln T1 upon T3, and you know T1 and T3। ठीक है ना, you have by considering the equilibrium at point A and point D, you know the value of T1 and T3। just substitute these values, T1, T3 and beta, you will get the value of mu। ठीक है, that is equal to 0.292, and upon substituting mu in the any equation, either 1 or 2, you can easily get the value of what?
सॉरी नॉट इन वन एंड सेकेंड, एनी ऑफ द थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट करिए म्यू की वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2, you will get the value of T2. Okay, is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, apart from Adnan, is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. हेलो सर। yes. सर लॉग लगा के भी फाइंड कर सकते हैं ना? लॉग लिए बगैर फाइंड कर सकते हैं, लॉग लेकर के, लॉग लिए लॉग- बिना कैसे सर- फाइंड करेंगे ये बताइए? लॉग लिए बगैर तो नहीं फाइंड कर पाएंगे। सर सर यहाँ एलएन लिया है, मैं वो बोला कि लॉग लेके कर सकते हैं ना फाइंड? क्या चीज? यहाँ एलएन लिया है तो हाँ। लॉग लेके भी फाइंड कर सकते हैं ना? यस यू कैन, ठीक है। बट देखिए यहाँ पर यही तो बात है ना, आपको अपने फायदे के बारे में सोचना है ना। आप log बेस 10 की बात कर रहे हैं क्या? ln का क्या मतलब होता है? हाँ सर। ये भी तो log ही होता है ना, बट बेस e होता है ये, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है। बट ये है कि अगर आप log बेस e ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप चाहे तो log बेस 2 ले लीजिए, ये आपकी मर्जी है भाई, ठीक है, लेकिन आप प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट कर देंगे, ठीक है, सॉल्व होगा, उससे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इट विल कॉम्प्लिकेट योर प्रॉब्लम्स, इट विल कॉम्प्लिकेट योर प्रॉब्लम्स। सो इट्स बेटर कि आप बेस ई पे ही ले, नेचुरल लॉग ही ले दोनों साइड, ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बेस और आपका क्या नाम है ये जो सॉरी नॉट एक्सपोनेंट, दिस बेस क्वांटिटी इज सेम, ठीक है ना, तो ये आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस वजह से आपको आसानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक। अदरवाइज इफ़ यू टेक डिफरेंट बेस का लॉग लेंगे तो आपका वो कॉम्प्लिकेशन आएगा प्रॉब्लम में, ठीक है, ठीक। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। नाउ Yes, sir. okay, now it's enough. Okay, I got it that you all got the point. Okay, now coming to the third problem, we are having one more problem. Okay, one more problem. Is it visible to everyone? Yes, sir. Okay, it's a very good problem. You can, and easy one actually. It's a easy one actually. The problem says you all can read. Please read it. Please read it. And I'm reading once for you all. A pulley requires 200 Newton meters torque to get it rotating. To get it rotating. एक पुली है, ठीक है ना, ये जो आपको सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है ये एक पुली है, ठीक है, इस पे 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन दैट इज इट इज एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंड यू कैन ईजिली सी, इन्होंने तो खैर दे दिया कि एंगल ऑफ रैप जो है वो आपका 180 डिग्रीज है, बट यू कैन ईजिली सी एक्चुअली, ठीक है ना, कि क्या ये भाई 180 डिग्री दिख भी रहा है हमें, ठीक है ना, तो अगर नहीं भी दे रखा होता तो यू कैन हैव फाउंड इट, ओके, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू दे रखी है भाई, म्यू एस जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी दे रखी है, रोप एंड द पुली के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक, एंड दे आर आस्किंग फॉर द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट enough tension in the belt so that it can rotate the pulley, ताकि पुली जो है वो रोटेट कर सके, ठीक है। सो प्रॉब्लम समझ में आ रही है? ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि ये एक ब्लॉक है, ठीक, यहाँ पर आपका ये पुली जो है आपकी फिक्स्ड है, ठीक है ना, और इस पे रोप जा रही है, ठीक है, रोप जा रही है, ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर कितना फोर्स लगाया जाए, यहाँ पर कितना फोर्स लगा रहे ताकि इसके अंदर एनफ टेंशन क्रिएट हो सके कि
200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो ट्रांसमिट हो सके इसके अंदर से, इसके अंदर से 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो ट्रांसमिट हो सके। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, प्रॉब्लम सबने पढ़ ली, इसे प्रॉब्लम सबने पढ़ ली। Has everyone read the problem? Okay. Yes, sir. Okay. Wait a minute. ठीक है। So again we have to do the analysis of the problem। क्या है भाई, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क ट्रांसमिट कराना है भाई पुली के थ्रू। ठीक है, पुली के थ्रू हमें 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क ट्रांसमिट कराना है। ठीक, एंड एक फोर्स F रिक्वायर्ड है जो कि पुली को इक्विलिब्रियम में रखेगा। ठीक है ना, एक F फोर्स रिक्वायर्ड है जो कि पुली को इक्विलिब्रियम में रखेगा। ठीक है, सो व्हाट वी हैव इज, मान लेते हैं कि एक साइड टेंशन T1 है, एक साइड टेंशन T2 है रोप में। ठीक है, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनेगा। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम जो है हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। क्या क्या लग रहा है भाई इस पे, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, एंड टू फोर्सेस टेंशन T2 एंड T1 इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, एंड अ टॉर्क ऑफ 200 न्यूटन मीटर इज ऑल्सो एक्टिंग एंड इट इज क्रिएटिंग ड्यू टू T1 एंड T2 की वजह से एक टॉर्क क्रिएट हो रहा है कितने का, 200 न्यूटन मीटर का। एंड इन द क्वेश्चन इफ यू सी द डायग्राम केयरफुली, इट हैज़ गिवन द वैल्यू ऑफ दिस रेडियस की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी, 0.25 मीटर्स। ठीक है, नाउ वी हैव द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, फ्री बॉडी डायग्राम है तो फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज इक्वल टू 0। ठीक, सो वी विल ट्राई टू डू दिस, लेट्स सी। ठीक है, सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमने पहले ही अज्यूम कर लिया भाई, क्या टॉर्क जो है 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया हुआ है। ठीक है, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया हुआ है। सो क्या होगा भाई, T2 इज ग्रेटर देन T1, ये हमारा अजम्पशन है। तो आप सिंपली देखिए कि अगर आप सेंटर के अबाउट मोमेंट लीजिए भाई, सेंटर के अबाउट मोमेंट लीजिए। ठीक है, ये T1 है और ये T2 है। ठीक, और ये क्या है आपका F। ठीक है, तो मोमेंट T2 की वजह से कितना मोमेंट आ रहा है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई, R इंटू T2। ठीक है, और T2 किस डायरेक्शन में घुमाएगा, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप किसे आप क्या नाम है, पॉजिटिव लेते हैं, किसे नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया, स्टैंडर्ड नोटेशन, एंड काउंटर क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है, तो माइनस T2 इंटू R रेडियस। ठीक है, एक तो ये टॉर्क हुआ एट सेंटर। ठीक, एंड ड्यू टू F यू हैव व्हाट, आप F टॉर्क लगाएगा कि नहीं लगाएगा ये बताइए। एट सेंटर F टॉर्क लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बताएं भाई, लगाएगा, हेलो, नो, F टॉर्क नहीं लगाएगा। ठीक है, F इंटू क्या भाई, सेंटर से F की डिस्टेंस कितनी है, 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस वन, T1 की वजह से कितना टॉर्क लगेगा या मोमेंट लगेगा। ठीक है, तो T1 की वजह से अबाउट सेंटर, ये भी R डिस्टेंस है, तो क्या हो गया भाई, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, और हमने काउंटर क्लॉकवाइज को क्या मान रखा है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव T1 इंटू
आर इज इक्वल टू कितना मोमेंट है भाई, नेट मोमेंट कितना लग रहा है इस पे 200 न्यूटन मीटर, 200 न्यूटन मीटर। किस डायरेक्शन में भाई, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो वी आर हैविंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, ठीक है। सो यू कैन राइट T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू 200 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इससे आपको इक्वेशन 1 मिली, T2 माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू 200 न्यूटन मीटर, ठीक। नाउ अगेन आपके पास T1 एंड T2 के बीच में रिलेशंस हैं, T1 एंड T2 के बीच में रिलेशंस हैं। व्हाट आर दोज रिलेशंस? What is that relation? T2 upon the higher tension, higher side की tension upon lower side tension is equal to e to the power mu times beta, ठीक है, ठीक। Now you can substitute T2 in this equation and you will get what? You can substitute T2 from here in this equation, you will get what? E to the power b mu times beta minus 1 into T1 is equal to 800 Newton, ठीक है, 800 Newton। You are just solving this equation, these two equations, you have this and you know the value of mu and the angle of wrap, you just substitute these values. What are those values? Mu is equal to 0.25 and beta is equal to pi radians. When you substitute, you will get the value of what? T1 and T1 is 670.6 newtons, and then you put it back in one of these equations, either this one or this one, you will get the value of T2, ठीक है ना। तो T1 एंड T2 आ गए हमारे पास, ठीक, T1 एंड T2 आ गए। नाउ व्हाट, हमने मोमेंट बैलेंस करके ये सब निकाला था। नाउ कमिंग टू द फोर्स बैलेंस, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, क्या हो गया भाई, F इज इक्वल टू T1 प्लस T2, F is equal to T1 plus T2, ठीक है ना, ठीक। and on solving this you have T1 and T2, you will get the value of F, so to maintain the equilibrium of this system you require a force F is equal to 2141 newtons, ठीक है, to create the what 200 Newton meter torque, Is it clear to everyone? Yes sir. Or I have gone fast? No sir. No? From the other side, anyone? Yes sir. सर वो फिगर पे से जो पहले समझाया था वो फिर से समझाओ ना, स्टार्टिंग वाला कौन बोल रहे हैं जनाब? ये फिगर कह रहे हैं आप? नहीं सर, उससे आगे वाला, ये नहीं हाँ सर, वो आगे, अच्छा आगे, ये कहाँ पे, कहाँ, ये, हाँ सर यहाँ, अच्छा देखिए -T2R1, हाँ देखिए ना, आप सिंपल है ये, कोई इसमें कोई ऐसा वो इश्यू नहीं है, ठीक। देखिए अब आपको यहाँ पे मोमेंट बैलेंस करना है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लगानी है। तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस क्या होती हैं? एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि m पहले यूज़ करते हैं कि f पहले यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले केस में m पहले यूज़ कर लिए, ठीक है। तो m पहले यूज़ किए तो देखिए T2 है हमारा, ठीक है ना। इस ब्लॉक पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना, T2, T1 एंड F,
ठीक है, ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ये आपको समझ में आ रही है बात, डायरेक्शन भी क्लियर है, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब देखिए इन 3 फोर्सेस की वजह से हम सेंटर पे मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इन तीनों फोर्सेस की वजह से सेंटर पे मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम T2 की वजह से निकालते हैं, ठीक है, T2 की वजह से अबाउट दिस पॉइंट दिस सेंटर ऑफ द पुली कितना मोमेंट लगेगा भाई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, रेडियस ऑफ द पुली, रेडियस ऑफ द पुली, तो T2 इंटू आर विल गिव दी क्या, मोमेंट एट दिस पॉइंट ड्यू टू T2, T2 की वजह से जितना मोमेंट लगेगा वो कितना होगा, T2 टाइम्स आर, ठीक है। नाउ ये अब देखना है क्या है कि हमें डायरेक्शन भी देखनी है भाई, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक, तो T2 जो है वो क्लॉकवाइज, आप खुद ही देखिए ना कि किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंड बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड जो नोटेशन है वो क्या है कि क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, और काउंटर क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो T2 की वजह से हमारा मोमेंट कितना आया पुली पे, -T2 टाइम्स आर, ठीक है। अब F की वजह से निकालिए, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, 0, ठीक है ना, तो ये 0 हो गया भाई, ठीक है, ये 0 हो गया, ठीक। नाउ कमिंग टू T1, T1 जो है उसका मोमेंट कितना होगा, T1 टाइम्स आर, T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही है, लेकिन इस बार डायरेक्शन बदल गई, क्या है भाई, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव मान रखा है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव मान रखा है, तो T1 इंटू आर, ठीक, इज इक्वल टू हमारा नेट मोमेंट लग कितना रहा है, नेट मोमेंट लग कितना रहा है भाई, क्लॉकवाइज कितना, 200 न्यूटन मीटर्स, तो 200 न्यूटन मीटर्स तो मोमेंट लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसके लिए हमने नेगेटिव लगा दिया। व्हेन यू डू इट यू विल गेट दिस इक्वेशन, T2 माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू 200, तो ये आपकी इक्वेशन 1 लिखी हमने, ठीक है ना, और कुछ नहीं लिखा। अच्छा, अब फ्रॉम द रिलेशनशिप वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन T1 एंड T2, T1 और T2 के बीच में आपको रिलेशन पता है, वो रिलेशन क्या है भाई, टेंशन ऑन द हायर साइड अपॉन टेंशन ऑन द लोअर साइड इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू टाइम्स बीटा, e टू द पावर म्यू टाइम्स बीटा, यू नो द वैल्यू ऑफ म्यू एंड वैल्यू ऑफ बीटा, ठीक है, यू सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज यू विल गेट T2 इज इक्वल टू T1 टाइम्स दिस वैल्यू, ठीक है, और इसको उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है, तो यू विल गेट द इक्वेशन लाइक दिस, e टू द पावर म्यू टाइम्स बीटा माइनस 1 इंटू T1 इज इक्वल टू 800 न्यूटन्स, ठीक है, एंड you will get further solving this you will get the value of T1 is equal to 800 Newton, T1 is equal to 800 Newtons and sorry T1 is equal to 670.6 Newtons and T2 will be what 470.6 Newtons, ठीक है। अपॉन सॉल्विंग दिस अब हमने तो मोमेंट बैलेंस करके ये दो चीजें निकाली, नाउ कमिंग टू दी फोर्स बैलेंस समेशन Fx इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो तीन ही फोर्स लग रहे हैं भाई, F T1 एंड T2, तो F इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ F, ठीक है, जितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। नाउ यहाँ तक सबको प्रॉब्लम समझ में आ गई? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Very good. Let me take your attendance. ठीक है भाई, आपकी अटेंडेंस हो गई। नाउ वन थिंग यू हैव टू डू इज प्लीज नोट डाउन दिस प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। वन मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये जो 100 न्यूटन के साथ ये आपका P है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ठीक है, ठीक, ओके, आई फॉरगॉट टू डायग्राम में थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ P, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स लग रहा है इधर P, यू हैव टू फाइंड दिस, ठीक है, ठीक।
Please note down this problem. Please note down this problem. हो गई नोट सबकी प्रॉब्लम? Yes, sir. Okay, Yes, sir. those who have written this problem, note it down, can leave. Okay, can leave. और सर किसकी नेक्स्ट क्लास किसकी है? मैथ्स की है। वो तो क्लास कहाँ होगी? यहीं पे होगी कि क्या नाम है? नहीं नहीं, दूसरी लिंक भेजिए। अच्छा, दूसरी लिंक भेजें। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके।